और सबसे पहले रुख करते हैं अहम खबर का, जहां पर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का सदस्य बनाया गया है। अरोड़ा ने रोमानिया के लोन मिंकू राडुलेस्कू की जगह ली है। वे इस ओहदे पर 2 साल तक रहेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चल रही एसोसिएशन की चौथी मीटिंग में उन्हें इस ओहदे पर फायज किया गया है। अरोड़ा की सदारत में चल रही मीटिंग में 50 ममालिक के 120 नुमाइंदे शामिल हुए। इस मौके पर ईवीएम का भी मसला उठाया गया। हालांकि सुनील अरोड़ा ने ईवीएम के टेम्पर होने से फिर से इनकार किया है। उनका कहना है कि आम इंतखाबात से पहले असेंबली इलेक्शन के नतीजे अलग क्यों थे, और जब जिसके फेवर में नतीजे आते हैं तो वो ईवीएम को ही निशाना बनाने लगता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। You see, different countries have different ways of conducting elections. Let us take the EVM scenario in India from 2014 onwards to start with. You had a Lok Sabha election in 2014, you got X result. 4 or 5 months later, you had elections in Delhi Assembly, you got a totally obverse result. We don't refer to political parties by name, but you're all aware who won where. After that, since then you have had elections in so many states and UTs. Recently, before these Lok Sabha elections, you had elections in Chhattisgarh, you had elections in Madhya Pradesh, in Rajasthan. The results are quite different from the Lok Sabha results. Sometimes one feels a bit distressed also that we have consciously or maybe unconsciously tended to make EVM some kind of a football to be tossed whenever we like, wherever we like. और वहीं इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक मर्तबा फिर से ईवीएम टेम्परिंग से साफ इनकार किया है। So far I just told you the technical aspect of the EVM, and I again declare, which I have declared so many times, me and my colleagues Lavasa ji and Sushil Chandra ji, wherever we get an opportunity, EVM cannot be tempered. It can malfunction. And even the instance of malfunctioning is so kind of negligible, but even there we have, at least within the ECI, a zero tolerance on the issue. कर्नाटक के कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी का कहना है कि वो अहम जानकारियां नहीं दे रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद जेरे इलाज डीके शिवकुमार को देखने के लिए पहुंचे कांग्रेस लीडरान को रोक दिया गया है। ईडी के इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है, तो वहीं दूसरी तरह इस मामले में पार्टी लीडरान ने डीके पर कार्रवाई को बदले के जज्बे से उठाया गया कदम करार दिया है। इस बीच साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी भी डीके शिवकुमार की हिमायत में उतर आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में अपोजिशन को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि बीजेपी इस तरह के इल्जाम को सिरे से खारिज करती नजर आई। वाज़ेह है कि कई दिनों की पूछताछ के बाद मंगल को ईडी ने दिल्ली में डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया था, और जहां शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के नोटिस को चैलेंज की अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद उन्हें नोटिस भेजा गया था। शिवकुमार 30 अगस्त को ही ईडी के सामने पहली मर्तबा पेश हुए थे, लेकिन चौथी पेशी के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। I had a talk with my colleague Suresh and inquired about DK Shivkumar's conditions. He told me that he has some health issues. Then I think that I have to inquire about his health issue. I came here. First of all, they permitted me to inside the hospital, but then they did not allow me to see DK Shivkumar. I don't understand this type of attitude from the government of India, because he already cooperated with the ED officials. We are all law-abiding citizens. Indian National Congress also ready to cooperate any law enforcing agencies. But here the problem is to look after the health condition of the Shivkumar also. He had undergone angioplasty. He had undergone thyroid surgery. Now he had a high blood pressure, I think so. Diabetic issue. Some health issues are there. I think these ED people are not allowing to have a proper treatment for him also. It is a vindictive politics, only to harass opposition leaders. They are doing this. It is at the behest of
BJP party, all these things are happening. The arrest of Chidambaram, the arrest of DK Shivakumar, not at all warranted. जो हमारे देश में चल रहा है आजकल, आपको देखा है कि ये लोग विपक्ष की कोई आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। कश्मीर में उनको बोलने के पहले ही उनको भी गिरफ्तार कर दिए हैं। यहाँ तो जो कुछ बोल रहा था, जो काम कर रहा था, जो कर्नाटक में हमारी सरकार की डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश के खिलाफ बहुत सख्त काम किया था, उनके खिलाफ एक्शन ले गया है। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंक्वायरी सरकार को करने का बिल्कुल पूरा हक है। CBI, ED, IT जो भी चाहते हैं कर दीजिए। मतलब अगर कोई कहते हैं कि हाँ आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, या हम भाग जा रहे हैं, या हम कहीं जाके छुपा के हमारे आंसर्स को सब आपको नहीं दे रहे हैं, तब तो बात अलग होगी। लेकिन ये जो शिव कुमार साहब है और चिदम्बरम साहब भी शुरुआत से सब लोग जानते हैं वो कहाँ है। और वहीं इस मौके पर शशि थरूर ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। जब कोई कोऑपरेशन दे रहे हैं अथॉरिटीज़ को, जो जितने भी घंटे वो इंटरव्यू करना चाहते हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनके घर पे कई बार रेड हो चुके हैं, अभी अरेस्ट करके क्या कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा ही है। दिस इज़ very clearly, to tell you since you asked in English, this is very clearly an example of political vendetta, because it's an action taken against an individual who has been cooperating throughout with all the investigative agencies, whose places have been raided multiple times, who has not hidden anything. The arrest is clearly seen as punitive, because whatever else you can find out through inquiries, he has been cooperating with every inquiry. So how does arrest actually help? It just sends a chilling signal. कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद रियासत में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि रियासती हुकूमत कानून इंतजामिया पर कंट्रोल का दावा करती नजर आई। उधर कांग्रेस ने रियासत में आगजनी जैसे वाकयात से साफ इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि कुछ लोग शरारती तरीके से मुजाहरा का फायदा उठाकर ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। इस मौके पर पार्टी कारकुनान को महात्मा गांधी के अमन के रास्ते पर मुजाहरा करने की अपील की गई। No, some bad elements always joined in these protests. But we have instructed all our workers not to take the law into their hands and participate in the protests with all, peace and whatever Mahatma Gandhi ji taught us, that we have to observe. That is the Gandhi ji taught us to our Congress party and to our workers. So we have asked our workers to stage their protest peacefully. Now, there was an initial outburst, and we have given direction to our officers, and all our senior officers are on the spot and field. Now the situation is under totally control. Only Ramnagar Bandh is taking place today. That also we are very much confident that it will go peacefully. The public want to protest, let them protest, but not by burning buses or losing government property. They are supposed to be your party workers. I request all the people, those who are agitating, not to destroy any property of government. Let them want, they can protest, they have right. They should not सदर जमहूरिया की जानिब से केरल के गवर्नर मुकर्रर किए जाने के बाद आरिफ मोहम्मद खान आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां पर राजभवन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। साबिक चीफ जस्टिस सदाशिवम की वो जगह लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि गवर्नर सदाशिवम के लिए आज विदाई तकरीब रखी गई थी, जिसमें रियासती सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सदर जमहूरिया की जानिब से केरल के गवर्नर मुकर्रर किए गए आरिफ मोहम्मद खान आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे। आलमी सतह पर जारी मंदी के बीच मुल्क में सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है और मुल्कगीर पैमाने पर सोने की कीमत 40,000 फी 10 ग्राम को पार कर गई है, जिसकी कीमत ने मजीद
मजीद इजाफे का जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत फी 10 ग्राम तकरीबन 3,700 रुपए है, जो अब तक की तारीख का सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है। सोना ताजरों के मुताबिक सोने के बाजार में अभी और भी तेजी आएगी और इसकी अहम वजह अमेरिका और चाइना के बीच तिजारती जंग बताई जा रही है। ताजरों के मुताबिक मुल्क में पैदावार के 10 गुने सोने की खपत है और इसलिए यहां का बाजार बैनुल अक़वामी बाजार पर मुनहसिर है। ऐसे में सोने की कीमत में कमी के लिए आलमी बाजार में गिरावट का इंतजार करना पड़ेगा। तेलंगाना बीजेपी ने रियासती TSRC में बदनवानी का मुद्दा उठाया है। रियासती सदर के लक्ष्मण ने यहां पर महकमे में हड़ताली मुलाजिमों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के पास सेक्रेटरीट तुड़वाकर बनवाने के लिए तो पैसा है, लेकिन मुलाजिमों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट की बदहाली से हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। इस मौके पर लक्ष्मण ने कहा कि अगर जल्द ही मुलाजिमों की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी उनके हक में उतरने पर गौर कर सकती है। 1 सितंबर से नाफिज हुए नए ट्रैफिक कानून की इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद कड़े चार्ज को लेकर आम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट है। एक बेहतर कानून को अवाम के हक में बताते हुए पुलिस का कहना है कि महकमे की जानिब से अवामी बेदारी चलाई जा रही है और इसके बाद भी अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसे पेनल्टी देने से कोई नहीं बचा सकता। वाज़ेह रहे कि नए ट्रैफिक कानून के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना लगाने का कानून पास हुआ है, जो 1 सितंबर से नाफिज हो चुका है। आज टीचर्स डे है। वैसे तो एक उस्ताद के लिए पूरी जिंदगी तलबा के लिए ही होती है, लेकिन 5 सितंबर उस्तादों के लिए खास माना जाता है। लेकिन बदलाव के इस दौर में क्लास में अब वर्चुअल और मैकेनिकल टीचर भी मौजूद हैं। देखिए रिपोर्ट। जरा सोचिए, स्कूल का क्लासरूम और बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने वाला इंसान नहीं बल्कि रोबोट। अपनी तरह का ये एक अलग तजुर्बा बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने किया है, जहां बच्चों को रोबोट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाले ये रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। 3 रोबोट तकरीबन 300 तलबा को तालीम दे रहे हैं। रोबोट आने के बाद मैंने बहुत सारे बदलाव देखे क्लासरूम में। रोबोट की मदद से क्या होता है कि मेरा काम पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। रोबोट सब पढ़ा लेता है अपने आप। रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं, जो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उनके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। यही वजह है कि बच्चों को अपनी ये नई टीचर बहुत पसंद आ रही है। मुझे पहले तो अजीब लगा कि एक रोबोट सिखाएगा, उसके बाद अच्छा लगा जब उससे थोड़ी 2-3 क्लासेस हुई तो अच्छा लगा उसको सुन के। उसका सिखाने का तरीका अच्छा है। रोबोट टीचर बच्चों के पूछे गए सवालों का सही जवाब भी देते हैं। फीमेल टीचर की लुक में दिखने वाले एक रोबोट की कीमत 8 लाख बताई जा रही है। बदलती दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। हालांकि स्कूल ने रोबोट टीचर को लाने के बाद ये यकीन दहानी कराई है कि इससे बाकी टीचर्स में कोई कमी नहीं आएगी। हमने रोबोट्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अभी इंटरनेट के आने के वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से नॉलेज अभी इजीली अवेलेबल है। अभी शिक्षा इंटरनेट से भी मिल सकती है, तो टीचर्स को अपने आप को रीरोल करना पड़ेगा। जी मीडिया के लिए बेंगलुरु से निश्चिता वीरेंद्र की रिपोर्ट।